Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. In last session, we completed the numericals on heat engine, heat pump, refrigerator. Okay. In heat engine, the output is work done. That is the engine which absorbs heat energy and produce work and some amount of energy lost to the sink. Okay. So engine, that is output is work done and input is a heat supply. In the refrigerator, there is a amount of heat extracted from the refrigerator space, that is a refrigerator region. That is, it is a device which maintains lower temperature. Okay, that is a output is a Q2 and input for the run to the refrigerator is a work done, so Q2 upon W, COP. Okay, after that we studied heat pump. Heat pump is a device which is used to transfer heat from lower temperature to higher temperature region, that is a heated space, that is heated room. Okay, that is Q1 is the output and work done is the input, that is a Q1 upon W, that is a COP of heat pump. Okay, then we studied the numericals on heat engine, heat pump, refrigerator. Okay, after that we studied now second law of thermodynamics. Okay, before second law of thermodynamics we defines limitations of first law of thermodynamics. The law does not specify the direction of flow of heat and work. The law heat and work are mutually convertible, but work can be fully converted into heat, but heat can not be fully converted into work. Okay, this is the limitations of first law of thermodynamics. Based on this limitation of first law of thermodynamics, we start with the second law of thermodynamics. Okay, in second law of thermodynamics there are two statements. First statement is a Kelvin-Planck statement and second statement is a Clausius statement. Okay, in Kelvin-Planck statement and second Clausius statement. In Kelvin-Planck statement it is depend on heat engine, like heat engine, and Clausius statement like refrigerator और heat pump. मीन्स व्हाट, हीट इंजन क्या है आपका? हीट इंजन में क्या होता है, हीट सप्लाई की जाती है, पार्ट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड पार्ट ऑफ हीट इज लॉस्ट टू द सिंक. बराबर है. तो दिस हीट इंजन इज यूज्ड टू डिफाइन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट and Clausius statement is used for heat pump or refrigerator. Okay, the second law of thermodynamics, there are two statements. First statement is a Kelvin-Planck statement and second statement is a Clausius statement. What is Kelvin-Planck statement? It states that it is impossible to construct an engine working on cyclic process whose sole effect is the conversion of all the heat energy supplied to it into equivalent amount of work. मतलब क्या सांगितलेलं आहे, आप क्या बताया आपको इस एग्जाम्पल में कि ऐसा इंजन है जो कि इम्पॉसिबल, हम वो डिवाइस हम इम्पॉसिबल बना सकते हैं जो कि टोटल हीट की कन्वर्जन टोटल वर्क में करता है. ओके, तो ये क्या हो गया आपका इम्पॉसिबल. मतलब क्या हो रहा है, हीट इंजन में क्या होता है, पार्ट ऑफ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड पार्ट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट टू द सिंक. ओके, दिस इज द हीट इंजन. बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल. आप मतलब आप वैसा डिवाइस बना ही नहीं सकते कि जिसमें आपकी टोटल हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क. अगर टोटल हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क मतलब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होगा, मतलब आपकी इफिशियंसी कितनी होगी, 100% होगी. ओके, तो आइडियल कंडीशन में हम इफिशियंसी 100 कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल में कोई भी इंजन 100% इफिशियंट नहीं होता. सम अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट. मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट कन्वर्ट ऑल हीट एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. ओके, दिस डिफाइंस केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट. ओके, मतलब क्या बताए, कोई भी इंजन 100% इफिशियंट नहीं होता. कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ हीट इंजन दैट इज़ 100%. ओके, it means only some portion of the heat is converted into work and part of the heat is rejected to the low temperature reservoir like a heat engine. So Kelvin-Planck statement likes heat engine. It is impossible to construct a device operating on a cycle whose sole effect is the conversion of all heat energy into equivalent amount of work. Okay, this is the Kelvin-Planck statement. Okay, तो यहाँ पे मेरा डायग्राम निकालिए. जो फर्स्ट डायग्राम है, ओके, जहाँ पे दिखाया है इंजन है. इंजन क्या करता है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कर रहा है. ओके, और क्या कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है. वर्क भी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, Q1 अमाउंट. मतलब ऑल हीट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द वर्क, ऑल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड नन heat is rejected to the lower temperature reservoir.
ओके. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट डायग्राम इज ओके, but according to the second law of thermodynamics this is not possible. Then what is possible condition? Then show in figure, as shown in figure B. Okay, Q1 amount heat supply to the heat engine and part of heat is converted into work and remaining part of heat is rejected to the low temperature reservoir. This is possible condition as shown in figure B. Okay, figure A not possible, figure B possible, that is Kelvin Planck statement, that is a heat engine. Okay, now we studied the Clausius statement. Okay, according to Clausius statement it is like heat pump or refrigerator. What is heat pump or refrigerator? Transfer heat from lower temperature reservoir to higher temperature reservoir at the expense of work energy. मतलब heat pump हो या refrigerator हो, उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. जब हम वर्क डन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तभी आपकी लोअर टेम्परेचर की हीट कहाँ जाएगी? हायर टेम्परेचर के लिए जाएगी. अगर मैंने वो वर्क डन और इलेक्ट्रिसिटी नहीं सप्लाई की तो आपके लोअर लेवल की हीट हायर लेवल के जा सकते हैं क्या? नहीं. तो यहाँ पे वही बताया आपको क्लॉसेस स्टेटमेंट में, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल हुज सोल इफेक्ट इज द ट्रांसफर ऑफ heat energy from lower reservoir temperature to higher reservoir temperature at the without expenditure of energy. मतलब क्या है? आपकी लोअर टेम्परेचर की हीट हायर टेम्परेचर को नहीं जा सकती अगर आपने कोई हीट एनर्जी सप्लाई नहीं की होगी. मतलब लोअर टेम्परेचर की हीट हायर टेम्परेचर नहीं ट्रांसफर होगी जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई नहीं करेंगे. ओके, तो क्लॉसेस स्टेटमेंट यही बताया है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस operating on a cycle whose sole effect is the transfer of heat from lower temperature heat reservoir to higher temperature heat reservoir. It means energy in the form of work. Okay, it means energy in the form of work must be added to a device for transferring heat from lower temperature heat reservoir to higher. मतलब हीट आपको लोअर से अपर जाना है तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी. तो ये क्लॉसेस स्टेटमेंट में बताया. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में क्या बताया है? कोई भी इंजन 100% इफिशिएंट नहीं है. पार्ट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड पार्ट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द लोअर हीट टेम्परेचर रिजर्वायर. दैट इज अ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लाइक हीट इंजन. क्लॉसेस स्टेटमेंट लाइक हीट पंप. ओके, आफ्टर दैट this is the diagram. According to the first diagram, figure A. Okay, in refrigerator heat transfer from lower reservoir to a higher temperature. TH is the higher temperature and TL is the lower temperature, and Q amount of heat is supplied from lower temperature to higher temperature without expenditure of energy. This is possible condition? No, heat always flows from higher temperature to lower temperature. Heat not flow from lower to higher. If you want to flow heat from lower to higher, we require expenditure of energy like work. Okay, so first condition is not possible as shown in figure B. Okay, in refrigerator we supply work done, then heat transfer from lower temperature QL to the higher temperature reservoir QH. This is the possible condition, that is the Clausius statement. So Kelvin Planck statement heat engine and Clausius statement heat pump or refrigerator. Okay, this is the two statements of second law of thermodynamics, Kelvin Planck statement and Clausius statement. Okay, now we start with the PMM2. Okay, in first law of thermodynamics, after first law of thermodynamics we studied PMM1. What is PMM? Perpetual motion machine. Okay, perpetual motion machine वन असेल तो फर्स्ट काइंड, सेकंड होगा तो सेकंड काइंड. ओके, तो PMM2 क्या होगा? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड. Okay, what is PMM2? Okay, in PMM1 a machine which violates first law of thermodynamics. Violate means जो फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करता डिवाइस, उसको हम बोलते हैं PMM1 मशीन. अगर मशीन सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उस मशीन को हम बोलते हैं PMM2 मशीन. दैट इज अ मशीन विच वायोलेट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड एज अ PMM2 machine. A machine which violates first law of thermodynamics is called as a PMM1. Okay, now PMM2 that is violates second law, that machine is called as a PMM2. Okay, अगर वायोलेट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? सेकंड लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ केल्विन प्लैंक में क्या बोला है कि नो इंजन इज 100% इफिशिएंट. ओके,
तो PMM2 में क्या होगा, इंजन इज 100% इफिशिएंट, दैट इज ऑल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, ओके, दैट इज अ PMM2 मशीन, ओके। अकॉर्डिंग टू आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक मशीन है जिसको हमने हीट सप्लाई किया है और टोटल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, ओके। दिस इज नॉट फॉलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, okay, not follow second law of thermodynamics, that is the machine is a PMM2, because PMM2 means a machine which does not follows second law of thermodynamics, that is a PMM2, okay. So 100% efficient engine, that is a PMM2 इंजन, बराबर है। तो यहाँ पे आपकी PMM2 हो गया, ओके। लेकिन 100% इफिशिएंट हो रहा है, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई हो गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, ओके। तो दिस इज द PMM2 machine which satisfy first law but not satisfy second law. PMM2 machine satisfy first law but not satisfy second law, okay. Now equivalence of Clausius statement and Kelvin Planck statement. What is the equivalence? Okay, equivalence means what? According to the second law of thermodynamics, there are two statements, Kelvin Planck statement and Clausius statement, okay. So when we satisfy second law of thermodynamics, both the statements should be satisfied. Means what? If Kelvin Planck statement follows, then Clausius statement also follows. Means what? For second law of thermodynamics, both the statements should be valid. Not possible that one Kelvin Planck statement follows and Clausius statement not follows. This is not satisfy second law of thermodynamics. This is the equivalence. Means what? अगर आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी फॉलो होना चाहिए, तो ही क्या होने वाला है, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेटिस्फाई होने वाला है। अगर आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फेल है और क्लॉसियस स्टेटमेंट वैल्यू फॉलो कर रहा है, तो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है, राइट डाउन द इक्विवेलेंस ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन स्टेटमेंट, ओके। तो प्रूव करना है आपको यहाँ पे कि अगर मेरा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फेल है तो मेरा क्लॉसियस स्टेटमेंट भी क्या होने वाला है, फेल होने वाला है। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ क्या है, अगर मेरा क्लॉसियस स्टेटमेंट फेल हो रहा है तो मेरा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी क्या होने वाला है, फेल होने वाला है। तब भी हम क्या प्रूव करेंगे, इक्विवेलेंस बिटवीन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपके दो प्रूफ्स है। फर्स्ट तो आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फेल होने वाला है तो आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट भी फेल होगा। सेकेंड प्रूफ क्या है, अगर मेरा क्लॉसियस स्टेटमेंट फेल है तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी क्या होने वाला है, फेल होने वाला है। तो ये दो प्रूफ मुझे प्रूव करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टू प्रूव दैट वाइवोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट रिजल्ट्स इनटू वाइवोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, ओके। मतलब क्या है, अगर मेरा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फेल हो रहा है तो मेरा क्लॉसियस स्टेटमेंट भी क्या होगा, फेल होगा। तो ये मुझे प्रूव करना है, ओके। यहाँ पे दो डायग्राम्स दिए हैं। फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे है और सेकंड डायग्राम कंबाइन सिस्टम वाली है। अभी हम देखेंगे फर्स्ट डायग्राम में, ओके। तो फर्स्ट डायग्राम में मैंने क्या किया है, एक इंजन लिया है और एक पंप लिया है। इंजन के लिए क्या होगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होगा और पंप के लिए क्या होगा, मेरा क्लॉसियस स्टेटमेंट होगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। फेल हो रहा है मतलब क्या होगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हीट इंजन, मतलब क्या है, ऑल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। देन मेरा क्या होगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होगा, फेल होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में दे सकते हैं, इंजन के यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है, ओके। सो मेरा वर्क डन प्रोड्यूस हुआ है Q1 अमाउंट, ओके। तो ये क्या हो गया, मेरे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फेल हो गई, बराबर है। उसी डायग्राम में मैंने पंप यूज़ किया है, बराबर है। तो पंप को जो हीट इंजन का जो वर्क डन प्रोड्यूस हुआ है कितना, Q1 अमाउंट, वो किसको सप्लाई किया है, पंप को सप्लाई किया रन करने के लिए, ओके। तो पंप क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर की हीट Q2, ओके, वो कहाँ सप्लाई करेगा, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर। सो हायर टेम्परेचर रिजर्वायर जाने के वक्त कितनी हीट होगी, Q2 प्लस वो वर्क डन, दैट इज अ Q1। सो क्या होगा, Q1 प्लस क्या होगा मेरा Q2। सो मेरे हायर टेम्परेचर की हीट कितनी जाएगी, Q1 प्लस Q2, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट डायग्राम, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, हीट इंजन एंड हीट पंप को दोनों को क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ। अभी यहाँ पे कंबाइन सिस्टम डायग्राम है, ओके। अभी कंबाइन सिस्टम में क्या करना है, सबका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। देखो अभी कंबाइन करने के वक्त क्या है, इंजन क्या करता है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, और पंप क्या कर रहा है, वर्क एब्सॉर्ब कर रहा है, बराबर है। मतलब वो वर्क डन क्या हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गया, जीरो हो गया। सो कंबाइन सिस्टम में कोई वर्क डन है क्या, नहीं है, ओके। अभी देखो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट जा रही है ऊपर Q2,
तो मेरी नीचे से सेकंड डायग्राम में Q2 अमाउंट ऑफ हीट जा रही है। ओके, अभी ऊपर देखते हैं। ऊपर फर्स्ट डायग्राम में देखो Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द हीट इंजन। ओके, और पंप क्या कर रहा है, Q1 प्लस Q2 अमाउंट ऑफ हीट हायर टेम्परेचर रिजर्वायर को लेके जा रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे कौन से अमाउंट ज़्यादा है, Q1 प्लस Q2। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस क्या होगा Q1, क्योंकि एरो ऊपर नीचे है, बराबर है। तो मेरा ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ Q2। ओके, तो ऊपर कंबाइन सिस्टम के ऊपर क्या जाएगा, Q2, बराबर है। सो यहाँ पे डायग्राम में दे सकते हैं लोअर टेम्परेचर से हीट Q2 आपकी कहा जा रही है हायर टेम्परेचर विदाउट वर्क, मतलब आपकी हीट लोअर टेम्परेचर से कहा जा रही है हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एनर्जी इनपुट। दिस इज पॉसिबल नॉट अकॉर्डिंग टू क्लॉसेज स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू construct an device operating on a cycle transfer of heat from lower temperature to higher temperature without any energy input. Okay, then Clausius statement fail. Okay, so we prove that violation of Kelvin Planck statement results into violation of Clausius statement. देखो यहाँ पे आपका Clausius statement भी क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, अभी सिमिलरली मुझे क्या प्रूव करना है दूसरे इसमें, कि मेरा अगर Clausius स्टेटमेंट फेल है तो मेरा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। ओके, तो अभी नेक्स्ट है टू प्रूव दैट द वाइवोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट रिजल्ट्स इनटू वाइवोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होने वाला है, फेल होने वाला है। मतलब क्या है, लोअर टेम्परेचर की हीट हायर टेम्परेचर को जाने वाली है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी एनर्जी इनपुट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर है जो कि लोअर टेम्परेचर की हीट Q2 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है और वही हीट हायर टेम्परेचर को लेके भेज रहा है Q2 विदाउट एनी एनर्जी इनपुट। ओके, अकॉर्डिंग टू फिगर 1। ओके, वही मेरा सेकंड डायग्राम उसी में है, उसमें इंजन है। ओके, इंजन क्या कर रहा है, फॉलोज कर रहा है यहाँ पे केल्विन प्लैंक, दैट इज Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कर रहा है और उससे वर्क डन प्रोड्यूस किया है और सम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉलो हुआ तो क्लॉसियस स्टेटमेंट फेल हो गया, बराबर है। तो इन दोनों सिस्टम को क्या कर दिया मैंने, कंबाइन कर दिया, रेफ्रिजरेटर को और इंजन को। तो मेरा क्या हो गया, कंबाइन सिस्टम हो गई। ओके, अभी देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट रेफ्रिजरेटर एब्सॉर्ब कर रहा है और इंजन क्या कर रहा है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट लोअर टेम्परेचर को दे रहा है। दोनों एरो ऊपर नीचे है, मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो कंबाइन सिस्टम से कोई हीट नीचे या ऊपर नहीं आएगी, बराबर है। तो कंबाइन सिस्टम में Q2 कुछ भी नहीं है। ओके, अभी ऊपर वाले सेक्शन में देखते हैं फर्स्ट डायग्राम में Q2 क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है और Q1 क्या है, नीचे आ रहा है, बराबर है। तो Q1 बड़ा होता है और Q2 छोटा होता है, तो क्या होगा, मेरा नीचे आ जाएगा Q1 माइनस Q2। कंबाइन सिस्टम में नीचे आ गया Q1 माइनस Q2। ओके, अभी कंबाइन करने के बाद यहाँ पे जो वर्क डन है वो कितना है, Q1 माइनस Q2। सो मेरा वर्क डन कितना प्रोड्यूस होया, Q1 माइनस Q2। मतलब टोटल हीट इज कन्वर्टेड इनटू टोटल वर्क इन कंबाइन सिस्टम, दैट इज वाइवोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, पार्ट ऑफ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड पार्ट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। ओके, सो वाइवोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट रिजल्ट्स इनटू वाइवोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, दिस इज द इक्विवेलेंस बिटवीन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है राइट डाउन द इक्विवेलेंस बिटवीन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो आपको ये दो प्रूफ्स लिखने हैं। फर्स्ट प्रूफ है अगर वाइवोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक्स रिजल्ट्स इनटू वाइवोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, सेकंड में वाइवोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट रिजल्ट इनटू वाइवोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, तो ये आपको दोनों बताने हैं। ओके, अभी सिंपल पार्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है वो बताएंगे। अभी आपको पाथ पता है, पाथ मतलब क्या होता है, मैंने अभी पहले यूनिट में आपको बताया था। पाथ मतलब क्या है, अगर आपकी सिस्टम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम सेकंड पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए जाने के वक्त फॉलो वो कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट फॉलो करती है, तो उसको बोलते हैं हम पाथ, बराबर है। मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 को जाना है मुझे, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 के जाते वक्त मैं कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट फॉलो करता हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ द सिस्टम, बराबर है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में प्रोसेस में कि जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या है, जैसे कि मेरी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रही है,
फॉलोड बाय पाथ ए, ओके। और फिर सिस्टम 2 से सिस्टम 1 मेरी क्या हो गई, रिवर्स हो गई, लेकिन पाथ भी सेम फॉलो किया, पाथ फॉलो ए, देन द सिस्टम फॉलोज रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब क्या है, स्टेट 1 से 2 तक जाते तक मैंने अगर पाथ ए फॉलो किया और फिर से स्टेट 2 से स्टेट 1 आते वक्त सेम पाथ फॉलो किया तो मेरी प्रोसेस क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अगर मैंने स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाते वक्त पाथ ए फॉलो किया और स्टेट 2 से स्टेट 1 आते वक्त पाथ बी फॉलो किया, मतलब पाथ चेंज हो गई, मतलब कंटिन्यूस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट जो जाते वक्त मिली थी वो आते वक्त नहीं मिलेगी, मतलब मेरी जो प्रोसेस हो गई क्या हो गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। बराबर है, समझ गए आप। मतलब जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, एक पॉइंट से मुझे सेकंड पॉइंट तक जाना है, ओके। तो मैंने एक रूट फाइनल किया और उस रूट से चला गया, ओके। और फिर सेकंड के यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से मैंने रिटर्न उसी रूट से फर्स्ट यहाँ पे आ गया, तो मेरी प्रोसेस हो गई रिवर्सिबल। अगर मैंने जाते वक्त एक रूट फाइनल किया और आते वक्त दूसरे रूट से आया तो मेरी जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, इरिवर्सिबल। बराबर है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म्ड इन रिवर्स डिरेक्शन, रिस्टोरिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग बैक टू द इनिशियल कंडीशन एज द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, ओके। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, और जो पाथ फॉलो किया है वो भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जिससे कि मेरी सिस्टम और सराउंडिंग में कोई अफेक्ट होना नहीं चाहिए। बराबर है। तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इम्पॉसिबल है। कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती। जैसे कि मैंने हीट से वर्क प्रोड्यूस किया, उसी वर्क से हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बराबर है, तो पाथ नहीं फॉलो कर सकता। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, आइडियल प्रोसेस है, इम्पॉसिबल प्रोसेस है, ओके। अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल प्रोसेस वी गेट लार्जर वर्क, बट this is not possible, so we prefer Carnot cycle, okay. This is approximately near to the reversible cycle, so we use as a Carnot cycle as a reversible cycle, okay. So Carnot cycle is a reversible cycle, okay. Now irreversible cycle according to as shown in figure, okay. If your follow state 1 to 2, okay, by green path and return back to the 1 by green path, then your process is the reversible. When we follows the process 1 to 2 by dot line and return back to the 2 to 1 by green path, then your process is a irreversible process, okay. Now what is the irreversible process? It is defined as the process which cannot be performed in reverse direction so that final state is identical with initial state. मतलब यहाँ पे ध्यान रखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में इनिशियल और फाइनल स्टेट आपकी सेम आने वाली है, लेकिन पाथ क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले। रिवर्सिबल में पाथ जाते वक्त भी सेम होगा, आते वक्त भी सेम होगा, लेकिन इरिवर्सिबल में पाथ जाते वक्त अलग होगा और आते वक्त अलग होगा, ओके। सो इनिशियल और फाइनल सेम है, लेकिन आपकी जो बीच में क्या वाली कंडीशन है वो क्या होने वाली, सिस्टम और सराउंडिंग की चेंज होने वाली, ओके। सो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का दिस इज द डिफरेंस, ओके। हियर ओनली एंड स्टेट आर इक्विलिब्रियम स्टेट and all intermediate state, that is the path, are non equilibrium state are different, okay. अभी irreversible क्यों होता है प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन, ओके। जब आपके सिस्टम में फ्रिक्शन हो रहा है तो क्या होगा, आपकी एनर्जी लॉस होगी, ओके। तो एनर्जी लॉस होगी तो वो रिस्टोर नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रोसेस रिवर्स नहीं होगी, ओके। दीज आर द कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, फ्रिक्शन, ओके। फर्स्ट इज अ फ्रिक्शन, सेकंड इज अ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मीन्स व्हाट, अगर आपके सिस्टम और सराउंडिंग में, ओके, मान लो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस अलग होगा तो क्या होगा, आपकी हीट ट्रांसफर होगी, ओके। तो हीट ट्रांसफर होगी तो वो अगेन रिस्टोर नहीं होगी। मतलब जैसे कि चाय का कप है, ओके, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा, ओके, सराउंडिंग को हीट दे देगा और ठंडा हो जाएगा, और सराउंडिंग और चाय वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अभी सराउंडिंग की हीट लेके चाय को गर्म नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, बराबर। सो दिस इज द हीट ट्रांसफर, ओके। नेक्स्ट इज द मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, okay. When two fluids are mixed, their properties change, okay. Then we cannot be separated by two fluids, okay. So this is a irreversible process. These are the causes of irreversibility, okay. तो आपको पूछा जाता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो एक तो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए,
ओके कोई फाइनाइट डिफरेंस टेम्परेचर नहीं होना चाहिए और देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, देन द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके दिस इज द इरिवर्सिबल. ओके दिस इज द कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी. फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नो हीट ट्रांसफर, हीट एंड वर्क ट्रांसफर फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस शुड बी इक्वल. मतलब पाथ ए से जाते वक्त और पाथ ए से रिटर्न आते वक्त जो भी आपकी हीट इन हो रही है उतनी हीट बाहर जानी चाहिए, जो भी वर्क बाहर जा रहा है उतना ही वर्क अंदर आना चाहिए. बराबर है. मतलब हीट एंड वर्क ट्रांसफर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस शुड बी इक्वल. ओके कोई फ्लूइड मिक्स नहीं होना चाहिए. बराबर है. प्रोसेस मस्ट बी पोजेस्ड इन सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट. मतलब फॉलो द पाथ होनी चाहिए. दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ओके दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ओके ओके दिस इज द second law of thermodynamics chapter 1. Okay unit 2 chapter 1 completed. Okay in next lecture we start with the chapter 2 ideal gas processes. Thank you.